एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਨੀਤਾ ਪੁਰੀ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਨੀਤਾ ਪੁਰੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸੰਤੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ 25 ਨਵੰਬਰ 1962 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਕਾਰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੁਰਗਾ ਉਪਾਸਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਹੁਣੀ 2 ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ 4 ਭਰਾ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ 25 ਜਨਵਰੀ 1981 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸਵਰਗੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੁਰੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨ ਪੁਰੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਬਿਖੇਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੁਰਗਾ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਆਪ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਭੇਟਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਸਮੁਖ ਤੇ ਮਿਲਨਸਾਰ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰਫ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਨਵਜੋਤ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਪੂਰਨਿਮਾ ਪੁਰੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਡਾਕਟਰ ਨਵਜੋਤ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਨੈਚੁਰੋਪੈਥੀ ਰੇਕੀ ਧਿਆਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ज्ञ ਬਣਾਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਨਵਜੋਤ ਪੁਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨੈਚੁਰੋਪੈਥੀ ਯੋਗ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਨੀਤਾ ਪੁਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਨੀਤਾ ਪੁਰੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। उसने कभी भगवान के नाम का स्मरण नहीं किया, लेकिन कहते हैं गुरु करो जान के और पानी पियो शांति। गुरु जान के करना चाहिए और गुरु का कर्तव्य क्या है ये अवश्य जानना चाहिए। गुरु का कर्तव्य है कि अपने शिष्य को अवगुणों से दूर करके गुरु की ओर प्रवेश करना, ये गुरु का कर्तव्य होता है। नारद जी महाराज के मन में चिंता उत्पन्न होगी, कहने लगे ये तो मेरा जो भक्त है, जो मेरा शिष्य है, ये तो अवगुण में प्रवेश कर ही चुका है, लेकिन मुझे भी अवगुण में प्रवेश करने की प्रचलता औतक धारण करता है। नारद जी महाराज के मन में चिंता उत्पन्न हो गई। नारद जी महाराज जैसे ही उनके घर पर प्रवेश किए और उनके धर्म पत्नी कहती आज तो गुरुदेव यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उनके धर्मपत्नी नारद जी महाराज से कहने लगे कि हे नारद जी, गुरुदेव आप हमारे यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, हमारी एक मनोकामना है जो आप पूरा कर दीजिए। हमारे घर पर किसी की संतान नहीं है, अगर आपका आशीर्वाद हो जाए तो हमें संतान की प्राप्ति हो जाए। नारद जी महाराज ने एक उनको फल का प्रसाद दिया और कहने लगे कि ये जो फल है ये आप प्रातः काल होते ही इस फल को ग्रहण कर लीजिएगा। नारद जी के जैसे वचनों को सुनकर तो अजामिल की जो धर्मपत्नी थी उन्होंने उस फल को ग्रहण कर लिया। ग्रहण करने के उपरांत उनके यहाँ पर एक सुंदर सा पुत्र का जन्म हुआ। नारद जी महाराज बड़े ही प्रसन्न हुए, कहने लगे कि मेरे शिष्य का उद्धार करने का जो मूल मंत्र है वो इस पुत्र के द्वारा उपस्थित हो गया है। नारद जी ऐसे वचन सुनकर के अजामिल बड़े ही प्रसन्न हुए और कहने लगे इसका नामकरण संस्कार कीजिए।
जब अजामिल का अंत समय आ गया, इसलिए गरुड़ पुराण में इस चीज का प्रमाण हुआ है कि अगर जन्म जन्मांतर के पापों का जब क्षय हो जाता है और पुण्यों का जब उदय हो जाता है, तब इस मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। क्योंकि रामचरितमानस में कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पाव, बड़े भाग्यों के साथ में ही इस मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। ऐसे मनुष्य का शरीर प्राप्त नहीं होता है। जब हमारे इतने गुण इकट्ठा हो जाते हैं तब जाकर मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। और मनुष्य का शरीर प्राप्त होने के उपरांत सिर्फ भगवान के नाम का, हरि के नाम का स्मरण करना चाहिए। हमारे मन में आप लोगों के शरीर के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि जो शरीर है ये एक कर्म है, ये भगवान का दिया हुआ एक कर्म है। भगवान ने आप लोगों को यहाँ पर कुछ समय के लिए, कुछ वर्षों के लिए यहाँ पर भेजा गया है। किस लिए भेजा गया है? भगवान के नाम का स्मरण करने के लिए भेजा गया है। उसी प्रकार से अजामिल का जब अंत समय आया तो उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि मैं अपने पुत्र का एक बार दर्शन करूं। तो जोर जोर से नारायण शब्द का उच्चारण करने लगा। तो अंदर से प्रेममय नारायण शब्द का उच्चारण सुनने के उपरांत साक्षात भगवान नारायण उपस्थित हो गए। और जैसे ही नारायण उपस्थित हो गए, अजामिल ने देखा तो आश्चर्यचकित हो गया कि मैंने तो अपने पुत्र को यहाँ पर बुलाया था, लेकिन ये तो साक्षात नारायण आ गए हैं। अजामिल बड़ा ही प्रसन्न होकर भगवान के चरणों को दर्शन करके भगवान को प्रणाम करने लगे। तो कहते हैं हे हरि, आज मेरा जन्म उद्धार हो गया, मेरा ये शरीर उद्धार हो गया, क्योंकि मैं जन्म जन्मांतर से ऐसे पापों पर लीन था, आपके नाम का कभी स्मरण नहीं किया। भगवान कहते हैं हे अजामिल, जो आपने नारायण शब्द का उच्चारण किया है, उस नारायण शब्द का जो प्रेम था, उस प्रेम के कारण में अपने आप को नहीं रोक पाया, इसलिए मैं यहाँ पर आकर उपस्थित हो गया। क्योंकि रामचरितमानस में भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सोम पावा, मोहि कपट चल चित्र न भावा। अगर भगवान को प्राप्त करना है, अगर भगवान को प्रेम बस प्राप्त कर सकते हैं। और किस प्रकार का प्रेम होना चाहिए? निर्मल मन जन सोम पावा, मन को स्वच्छ और साफ होना चाहिए। बाहर से तो चाहे जितना विश्राम कर ले, चाहे जितने महंगे से महंगा कपड़ा पहने, लेकिन भगवान वो नहीं देखता। भगवान तो सिर्फ अपने भक्त का भाव देखता है। अब ये देखता है कि मेरे भक्त का भाव किस प्रकार का है। अगर भक्त का भाव साफ और स्वच्छ और सुंदर है, तभी भगवान उसकी अर्जी और उसकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं। क्योंकि जब भगवान अयोध्या से, जनकपुर से अयोध्या पहुंचे, तो माता कौशल्या भगवान से कह रहे हैं कि हे प्रभु, लल्ला मैंने आपको नहलाया धुलाया सारा कुछ किया, लेकिन आपके जो चरणांगों का जो स्पर्श मात्र से, पत्थर को स्पर्श मात्र से जो नारी का रूप धारण हो गया, ये आपकी रचना मुझे समझ में नहीं आई। तो माँ कौशल्या कहती है सकले अमानों से में तुम्हारे, सकले अमानों से में तुम्हारे, केवल कौशिक पानी सुधारे, केवल कौशिक पानी सुधारे। माता कौशल्या कहती है भगवान से, हे प्रभु आपके जो ये कार्य है ना, इस सकल अमानुष, ये आपके जो कार्य सब अमानुष है, ये कार्य आपके हमें पसंद नहीं है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? माँ मेरे ये कोई कार्य अमानुष नहीं है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, केवल कौशिक कृपा की भाई, केवल भगवान गुरुदेव कौशिक जी की कृपा से ही ये कार्य संपन्न हुआ है। और मनुष्यों के अंदर क्या मन में प्रवाहित हो जाता है, अगर कोई सुंदर सा कार्य हो गया तो हमने किया है, और अगर कोई कार्य गलत हो गया तो भगवान ने किया है। इसलिए भगवान कहते हैं, किसी संत ने कहा है कि दुख में सब स्मरण करे और सुख में करे न कोई, और जो सुख में स्मरण करे दुख काहे का हो। इसलिए जब मनुष्यों के अंदर विपत्ति व्याध उत्पन्न हो जाते हैं तब भगवान का स्मरण करते हैं, और जब भगवान की स्मरण करते हैं तो भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। और जब भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है तो फिर मनुष्य भगवान को भूल जाते हैं।
इसलिए माता कौशल्या कहती हैं कि आज सकल जग जाना मैं हमारा, आज सकल जग जाना मैं हमारा, देवी का तो जी बरन तुम्हारा, देवी का तो जी बरन तुम्हारा, आज सकल जगत जन्म है हमारा। आज आपके इन वचनों को सुनने के बाद में मेरा जन्म सफल हो गया है। और जे दिन गए तुम ही दिन बीते। हे प्रभु, जितने दिन आपको हमने देखा नहीं है वो दिन जो गए हैं वो विधि के जो विधाता की रची हुई जो रचना है उस रचना में हमारे लिखे हुए ना हो। क्योंकि भगवान कहते हैं कि अगर आपकी उम्र 50 वर्ष की हो गई है तो अगर आप भगवान को भजना 5 वर्ष पूर्व प्रारंभ किया है तो आपकी उम्र तो 50 की है, लेकिन भगवान की रची हुई रचना की उम्र में सिर्फ 5 वर्ष की है, क्योंकि आपने भगवान को भजना ही 5 वर्ष पूर्व आरंभ किया है। इसलिए भगवान कहते हैं, सत्य कहते हैं भगवान को प्रेम पूर्वक भजना चाहिए, प्रेम पूर्वक भगवान का स्मरण करना चाहिए। और जब भगवान का स्मरण होता है तो भगवान का की कृपा जो है अश्व ही प्राप्त होती है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं हर जगह उपस्थित नहीं हो सकता, मैं हर जगह उपस्थित नहीं हो सकता, इसलिए अपने अपने माता पिता की अवश्य सेवा करनी चाहिए। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान प्रातः काल उठके रघुनाथा माँ पिता गुरु भगवान प्रातः काल उठने के बाद में अपने माता पिता के चरणों को जब सोने जाते थे तो अपने माता पिता के चरणों को दबा करके और पुनः सोने के लिए प्रातः जाते थे। और जब प्रातः काल उठते थे तो अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श करते थे। क्योंकि भगवान कहते हैं कि सर्वप्रथम जो अपने माता पिता की सेवा करता है उसको किसी भी प्रकार की विपत्ति व्याधि से घबराना नहीं चाहिए। क्योंकि भगवान कहते हैं पहले अपनी माता पिता की सेवा करो, उसके उपरांत अपनी गुरु की सेवा करो, उसके उपरांत आप मेरी सेवा करो। भगवान ने पहली पूजा अपनी नहीं की है कि पहली पूजा भगवान ने अपनी नहीं, कहते हैं कि पहली पूजा आप अपने माता पिता की करो। क्योंकि उस माँ क्योंकि स्तोत्र में कहते हैं पुत्र हो जाइए माता न होती, पुत्र तो पुत्र हो जाता है लेकिन माता कभी माता नहीं होती है। माँ सदा ही अपने पुत्र का कल्याण करती है, इसलिए अपने माता पिता की अवश्य सेवा करनी चाहिए। कहते हैं कि जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, जो अपनी माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, कहते जो आज आप करेंगे तो कल आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। ये कलयुग है, कलयुग में तो इस हाथ से करो और इस हाथ से तुरंत प्राप्त होता है। आज अगर आप अपने माता पिता को कष्ट देंगे तो कल आप एक बात याद रख लीजिए, आपके पुत्र आप लोगों को भी कष्ट अवश्य देंगे। क्योंकि ये कलयुग है, यहाँ पर तो जो भी कर्म करोगे कर्म प्रधान विश्व रच जाता, जो जिस तरह को तस फल जाता। ये कर्म है, कर्म जो करोगे उसका फल यही भोगना पड़ेगा। ये द्वापर युग त्रेता युग सतयुग नहीं है कि कर्म यहाँ पर कर रहे हैं और इस युग में नहीं तो अगले युग में भोग लेंगे।
लेकिन कि भगवान ने रामचरितमानस में कहा कि कलयुग युग समय आने नहीं, कलयुग जैसा कोई युग नहीं है। इस बात का हमेशा याद रखिए, कलयुग जैसा कोई युग नहीं है। इस युग में तो सिर्फ स्मरण मात्र है। द्वापर त्रेता में सतयुग में जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर तक तपस्या करने के बाद में भगवान की प्राप्ति होती है। लेकिन ये कलयुग है, कलयुग में तो सिर्फ भगवान का स्मरण मात्र से ही भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है। और भक्ति किस प्रकार से होनी चाहिए? निष्काम प्रकार की भक्ति होनी चाहिए। उसे कहते हैं भक्ति। भक्ति होनी चाहिए कि भगवान की भक्ति करें और करने के बाद में अपनी लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर भगवान के दरबार में पहुंचे कि प्रभु हमारी इस प्रकार की ये मनोकामनाएं पूर्ण कर दीजिए। क्योंकि कहते हैं हमें चिंता नहीं होगी, उन्हें चिंता हमारी है। हम उस परम पिता परमेश्वर की क्या चिंता कर सकते हैं? उन्हें तो हमारी चिंता है, हम उससे क्या मांग सकते हैं? वो तो हमें बहुत कुछ दे दिया है। तो इसलिए भगवान कहते हैं अपने माता पिता की अवश्य सेवा करनी चाहिए। जो अपनी माता पिता की सेवा नहीं करते हैं वो पुत्र इस युग में जो भी कर्म करते हैं उन कर्मों को भोगने के बारे में पुनः यमलोक की यात्राओं को भोगना पड़ता है। ये करोड़ पुराण का व्यवहार है, ये हम अपने तरफ से नहीं कुछ कहते, क्योंकि माँ एक देवता देवी का रूप है और पिता एक देवता का रूप है। माँ क्या है? पृथ्वी। पिता क्या है? आकाश। तो इस माता पिता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि माँ कितना भी कष्ट सह ले लेकिन अपने पुत्र को कभी कष्ट नहीं होने देती। इसलिए उस माँ के मन की विचारना, उस माँ के मन की धारणा सुननी चाहिए कि माँ आपके मन की धारणा क्या है। क्योंकि हमने जब हमारे पास जब पुरी साहब का फोन आया तो पुरी साहब कहते हैं पंडित जी ऐसा ऐसा हमारे जीवन में हो गया है, लेकिन हमें पूरे शास्त्र के अनुसार करना है, ऐसे लोकाचार से नहीं करना है। हमें केवल पूरे शास्त्रों के अनुसार इस गरुड़ पुराण की कथा सुनाइए। उसके उपरांत जो भी हमारा शास्त्र कहेगा उसी शास्त्र के अनुसार ही हमें सारे कार्य करने हैं। पुत्र कैसा होना चाहिए? जो अपने माता पिता के अंत्येष्टि क्रियाओं को विधि और विधान के पूर्वक संपन्न करे, पुत्र ऐसा होना चाहिए। क्योंकि भगवान जब सरयू जी के किनारे पहुंचते हैं तो केवट से कहते हैं मांगी नाव न केवट आना। भगवान ने केवट से कहा केवट भैया नाव लेकर आओ, लेकिन केवट क्या कहते? मांगी नाव न केवट आना। केवट ने कहा मैं नाव लेके नहीं आऊंगा। कहते हैं दाता ये राम दिखाई सारी दुनिया, दाता ये राम दिखाई सारी दुनिया, दिखाई सारी दुनिया, दाता ये राम दिखाई सारी दुनिया। दाता कौन है? भगवान है। दाता जगह राम दिखाई सारी दुनिया, ये जितनी दुनिया है सारी दिखाई है, भगवान से ही प्राप्त करते हैं। भगवान केवट से कहते हैं हे केवट भैया आप उस नाव को लेकर आओ और मैं उस पार उतार दो। लेकिन केवट क्या कहते हैं? नहीं, मैं नाव लेकर नहीं आऊंगा। एक पल का भरोसा नहीं।
भजने व्यर्था है ये जीवन अनजाना, एक पल का भरोसा नहीं। आदम है तेरी जिंदगी, कुछ पल दी कहानी है। एतबार करी, विश्वास करी, ये बुलबुला पानी है। आदम है तेरी जिंदगी, कुछ पल दी कहानी है। एतबार करी, विश्वास करी, ये बुलबुला पानी है। दौलत दे खजाने ने जब यहाँ रह जाना, दौलत दे खजाने जब यहाँ रह जाना। नेकी हकीकत है, नेकी ने कभी आना, एक पल का भरोसा नहीं। बंदगी नाले जिंदगी है, सत्संग विच जाया करे। बंदगी नाले जिंदगी है, सत्संग विच जाया करे। दाता दी लगन भजना भजन, शुभ कर्म कमाया करे। बंदगी नाले जिंदगी है, सत्संग विच जाया करे। दाता दी लगन भजना भजन, शुभ कर्म कमाया करे। आंचल इस जिंदड़ी ने, आंचल इस जिंदड़ी ने, छावां को टल जाना। नेकी हकीकत है, नेकी ने कभी आना। युधिष्ठिर कहते हैं कि कलयुग का प्रतीक है कि एक ही पिता के अगर 4 पुत्र होंगे तो पिता अपने चारों पुत्रों को पाल लेगा, लेकिन अगर वो 4 पुत्र अपने पिता को नहीं पाल सकते हैं। इसलिए भगवान रामचरितमानस में कहते हैं कि एक ही पिता के विपुल कुमारा, प्रत्येक गुण हो ही अचारा। एक ही पिता के अनेक पुत्र होते हैं, लेकिन सबका भाव अभाव अलग अलग होता है। तो एक पिता के 4 पुत्र होने पर वो पिता अपने पुत्रों को तो पालने का है, लेकिन वो पुत्र अपने पिता को नहीं पाल पाता है। कौन कहने लगता है कि आपने हमारे साथ क्या किया है। अरे उस पिता से पूछो, जब आप लोगों का जन्म हुआ है, जन्म होने के बाद में उस पिता ने कितने कष्ट सहे, उस माँ ने कितने कष्ट सहे। आज आप उस माँ को कष्ट दे रहे हैं, तो आप इस बात को याद रखिए कि आपके पुत्र भी आपको कष्ट देंगे, क्योंकि हमें उस देश के रहने वाले हैं जिस देश में अपने माता पिता को देवता माना गया है। आप देख लीजिए, विदेश जाइए, अनेक जगह जाइए, लेकिन कोई भी देश में अपने देश को माता नहीं कहता है, लेकिन इस भारत को माता कहते हैं, क्योंकि उस देश के रहने वाले हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम उस देश के रहने वाले हैं जिस देश में माता पिता को अपना देवता समझते हैं, अपने बहन को देवी समझते हैं, अपने भाई को स्वर्गोत्तर समझते हैं। हम उस देश के रहने वाले हैं, इसलिए अपने माता पिता की अनेक
प्रकार की सेवा करनी चाहिए, अपने माता पिता के कहे अनुसार चलना चाहिए। क्योंकि सुंदरकांड में भगवान ने रामचरितमानस में अनेक प्रकार के कांड हैं, लेकिन भगवान सुंदरकांड में क्या कहते हैं? जामवंत के वचन सुहाए, असुनी हनुमंत हृदय अति भाए। कहते हैं जामवंत जी महाराज कहते हैं जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत नाम अद्भुत, जामवंत जी बहुत बुजुर्ग हैं, और हनुमान जी महाराज अतिरिक्त बर धामम, अतिरिक्त बर धामम, हनुमान जी महाराज एक जवान के रूप में वहां पर उपस्थित हैं। कहते हैं कि इस संसार में, इस जीवन में जब नौजवान लोग अपने बुजुर्गों की बात सुनने लगेंगे, अपने बुजुर्गों का आचरण करने लगेंगे, अपने बुजुर्गों के कहे अनुसार चलने लगेंगे, तो उनके करने का जो अयोग्य है, करने के जो कर्म है, वो सुंदर कर्म होंगे। इसलिए उसका नाम सुंदर कांड रखा। क्योंकि जामवंत जी महाराज क्या करें? जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान जी को सुहाए और भाई में दो प्रकार की रचना भगवान ने कही है कि कुछ वचन तो भाते हैं लेकिन सुहाते नहीं है, और जो सुहाते हैं वो भाते नहीं है। क्योंकि हनुमान जी की केवल महिमा हो रही है, राम जी की महिमा नहीं हो रही है। और भगवान क्या कहते हैं हनुमान जी कि जब तक राम की महिमा नहीं होती है तब तक मैं किसी की महिमा स्वीकार नहीं करता हूं। तब जामवंत जी महाराज राम काज करी लगी अवतारा। तब जामवंत जी महाराज कहते हैं हनुमान जी से आपका अवतार किस लिए हुआ? सिर्फ राम के काज करने के लिए अवतार हुआ है। तब हनुमान जी महाराज उठे और उठने के बाद कहने लगे कि बताइए कौन सा कार्य करना है? तो कहने का भाव ये कि अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए और अपने बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करना चाहिए। लेकिन आज के जो नौजवान हैं, अगर बड़े बुजुर्ग कुछ कहने लगते हैं तो कहते हैं कि आप चुप बैठो, हमें पता है क्या करना है। क्योंकि जब तक आप अपने आचरणों को, आप अपने बड़े बुजुर्गों के वचनों के अनुसार चलेंगे तभी सुंदर कर्म होंगे। तो अगर आप अपने बड़े बुजुर्गों का और माता पिता के कहे अनुसार नहीं चलेंगे तो कर्म सुंदर नहीं होते हैं। इसलिए सुंदर कर्म करने के लिए अपने माता पिता के अनुसार चलो और अपने माता पिता की सेवा करें।
सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि हमारे पुलिस शाखा के द्वारा जो भी भोजन पदार्थ यहाँ पर उपस्थित है, आप सभी लोग उसको ग्रहण करके अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। और मंच के द्वारा हम यहाँ पर बैठे हुए मंच के द्वारा आप सभी लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि आप सभी लोग अपना कीमती समय निकालकर उस पूर्ण आत्मा के अंतिम यात्रा के लिए, अंतिम विदाई के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। और जो भी चाय इत्यादि की व्यवस्था है वो आप सभी लोग ग्रहण कीजिएगा। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान।